Hello student, in this video we are going to start new chapter of your SS book, that is map. In this chapter you are going to learn about what is map, types of map, essential components of maps, plan and sketch. A globe is the most accurate model of Earth. It is small but of the same shape as the Earth, like a ball or a sphere, slightly flattened at the pole. A globe shows the exact direction, correct shape, and relative size of the oceans, continent, island, and seas. It also shows location of different places and feature in relation to one another. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of earth, as about our country, state, district, town or village, it is little help. In such a situation, we use a map. स्टूडेंट एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है, ग्लोब है अर्थ का मॉडल, जो है वो ग्लोब कहलाता है और स्मॉल मॉडल है अर्थ का। बिल्कुल इसकी वही शेप होती है जो अर्थ की होती है, स्पेयर शेप या बॉल के शेप में, जो पोल से फ्लैट है। हमारी अर्थ भी पोल पे क्या है, फ्लैट है। ग्लोब से हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन, शेप, साइज ओशन का, कॉन्टिनेंट का, आइलैंड्स का, सीज का पता चल जाता है। इसी के साथ साथ किसी भी प्लेस की लोकेशन भी जो है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो हमें ग्लोब से पता चल सकती है, अच्छे से पता चल जाती है। लेकिन ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ग्लोब्स अर्थ के बारे में तो हमें सब कुछ बता देता है, लेकिन जब हमें किसी छोटी जगह के, जैसे हमारे देश के, हमारे स्टेट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना होता है, जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है। इन सिचुएशंस के लिए हमें ग्लोब्स का यूज़ ना करके मैप का यूज़ करना पड़ता है। जब हमें छोटी जगह का हमें डिटेल्स जानकारी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप। मैप, a map is a representation or a drawing of the earth's surface or a place of it drawn on a flat surface according to the scale. Different features of world are marked on the map with the help of certain symbols, words, line and colors. However, a map is not as accurate as globe. Every map has some distortion because the curved surface of earth cannot be shown on a flat surface without distortion. It is impossible to flatten a round shape completely. The maximum distortion occurs in region where the poles, while the equilateral region can be shown with relatively less distortion. Hence, we see that a map is a two-dimensional representation of the earth, but the globe is a three-dimensional model. However, globe cannot be represent landform in 3 dimension. अब मैप क्या है? मैप क्या है? एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की, फ्लैट सरफेस की ड्राइंग है, और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं उसको हम सिंबल्स के द्वारा, किसी शब्दों के द्वारा, लाइन के द्वारा और कलर के द्वारा दिखा सकते हैं। मैप जो है, अगर हम देखा जाए तो वो एक्यूरेट जो, उससे हम अर्थ के सरफेस को नहीं देख पाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ मैप में क्या रहता है, डिस्टॉर्शन रहता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसका कारण है कि हमारी अर्थ का क्या है, हमारी अर्थ जो है बॉल की शेप की, स्पेयर शेप की है, तो उसमें बहुत सारे कर्व हैं। अब उन कर्व को हम फ्लैट सरफेस पे अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ
डिस्टॉर्शन आता है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। और जनरली जो डिस्टॉर्शन होता है वो पोल्स पे ज़्यादा आता है, क्योंकि पोल्स पे अर्थ ज़्यादा कर्व होती है कंपेयर टू इक्वेटर। मैप जो है वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन वो चीज़ें होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे अगर हम ग्लोब को लें तो ग्लोब की क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और क्या है, विड्थ भी है। लेकिन मैप की केवल 2 ही डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। नेक्स्ट इज एटलस। When many maps are put together, usually bound, we get an atlas. Atlases are of various size and measurement are drawn on it on a different scales. Besides map of selected continent and countries, it may be include information and diagram related to geographical features and population data. Maps are usually printed in a color in an atlas. It is difficult to prepare an atlas of a globe representing various features and theme. अब एटलस क्या है? एटलस अगर हम देखें तो ये क्या है, बहुत सारे मैप एक साथ अगर लगे हैं तो वो कहलाता है एटलस। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। अब एटलस जो है वो वेरियस साइज में आते हैं, अलग अलग साइज़ों के होते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके के स्केल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। उसमें बहुत सारे जैसे कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं। भाई मैप जो है कंट्रीज़ के हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के उसमें क्या हो सकते हैं, डाटा, पॉपुलेशन डाटा के मैप हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग मैप किसी एटलस में हो सकते हैं। मैप जो एटलस के जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, कलरफुल होते हैं। और आपको पता है ग्लोब को हम ग्लोब के लिए कोई भी एटलस तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मैप के लिए हम एक बुक एटलस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स होते कितने प्रकार के हैं? Maps are of different types according to the function. The commonly used map are the following. मैप्स जो हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली जो मैप यूज़ किए जाते हैं वो 3 टाइप्स के मैप हैं। फिजिकल और रिलीफ मैप्स। Maps showing natural as well as man-made features of Earth's surface such as mountain range, peaks, plateau, hills, plains, rivers, seas, oceans, dams, etc. are called physical or relief map. Different color or designs are used to show different landforms. फर्स्ट मैप जो है वो है फिजिकल मैप या अदर नेम है फिजिकल मैप का रिलीफ मैप, जिस मैप में या तो नेचुरल या मैन मेड फीचर्स जो हैं अर्थ के दिखाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, पीक हो गई, प्लेट्यू हो गया, हिल हो गया, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, डैम्स हो गए, वो मैप्स कहलाते हैं फिजिकल मैप और रिलीफ मैप कहलाते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट कलर और डिज़ाइन जो है, जो लैंड का डिज़ाइन है वो शो किया जाता है इन मैप्स के द्वारा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स। Maps dividing the world into administrative units such as different countries and state, districts, cities, towns and villages showing their boundaries are called political maps. Next one is political maps. Political maps कौन से मैप हैं जिसमें किसी देश की, किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, टाउन की, विलेज की, सिटी की बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, वो कहलाता है पॉलिटिकल मैप्स। Next one is thematics maps. Thematics maps focusing specific information such as road map, railway maps, aviation charts, nautical charts, weather maps, geographical maps, distribution maps, tourist maps are known as
thematical maps. Depending on the information given, maps are provided with suitable title. Thematics maps are made to meet a certain needs. अब थेमेटिक मैप्स क्या होते हैं? वो मैप्स जिसमें कुछ विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि रोड्स के बारे में, ठीक है, रेलवे के बारे में कि कहाँ कहाँ रेलवे लाइन जा रही है, किस तरीके से जा रही है। इसी तरीके से एविएशन चार्ट, जहाँ जहाँ क्या है, जहाज जो हैं वो जा रहे हैं, या वेदर का मैप हो गया। ज्योग्राफिकल मैप की मिट्टी कैसी है, चट्टानें कैसी हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। या फिर फसलों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। टूरिस्ट मैप्स होते हैं कुछ। इस टाइप के मैप जो कहलाते हैं वो थेमेटिक्स मैप्स कहलाते हैं। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, उसी हिसाब से मैप्स को क्या है, एक नाम दे दिया जाता है, एक टाइटल दे दिया जाता है। अगर आपको रोड चाहिए, रोड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम कौन सा मैप लेंगे? रोड मैप्स लेंगे। नेक्स्ट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के एसेंशियल कंपोनेंट, बेसिकली मैप के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ठीक है, there are 3 essential components of maps: distance, direction and symbol. If these components are observed while making a map, it can be quite accurate. Beside this, the title of map generally explain the main purpose of map. अब जो बेसिक कंपोनेंट है वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। यदि हम ढंग से किसी मैप को बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो बहुत ही सही इंफॉर्मेशन हमें उससे मिलेगी। अब हमें मैप चाहिए किसके लिए? ये एक मेन हमारा पर्पस क्या है मैप का, उसके अनुसार क्या होता है, मैप का नाम होता है या टाइटल होता है। अब डिस्टेंस क्या है? To draw maps, we reduce the actual distance between two places by proportion, as we have to fit a large area on a sheet of paper. This reduction is done very carefully so that the distance between the place is real as compared to other distance on the map. To make it possible, we represent a large distance on the ground as a definite small distance on the paper. In other words, a scale is chosen for purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. If you show the distance of 6 km between the school and your house by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 3 cm on the ground. The scale of your drawing will be 1 cm to 3 km or 1 cm to 3 lakh centimeter. अब डिस्टेंस जो हम मैप पे शो करते हैं, ठीक है ना। अब मैप तो बनता है बहुत छोटे पेपर पे और हमारी अर्थ का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब यदि हमें 2 प्लेस के बीच कोई डिस्टेंस बताना पड़े तो उतनी बड़ी शीट तो हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शन डिस्टेंस लेते हैं, एक स्केल लेते हैं। और वो स्केल कैसे लेते हैं कि जो भी एक्चुअल ग्राउंड में, मतलब जो अर्थ में एक्चुअल दूरी है, उसको रेशो ले लेते हैं जो डिस्टेंस आप एक्चुअल में ले रहे हो मैप के ऊपर। अब सपोज करो एक एग्जांपल दिया है कि आपके घर की और आपके स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर है। अब अगर आपको पेपर में ड्रॉ करना है और देखने वाले को भी पता चल जाए कि ये क्या है, आपके स्कूल का और घर का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तरीका ये है कि आपने 2 सेंटीमीटर जो है इक्वल टू 6 किलोमीटर आप लिख लिया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर को आपने केवल 1 सेंटीमीटर के इक्वल माना, उसको प्रोपोर्शन जो है दोनों का सेम आ गया है। अब हम उसको छोटे पेपर पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मैप to show large area like continent or countries with less detail on a map, we use small scale. For example, 1 centimeter equal to 1000 kilometer of the ground. अगर हमें बहुत बड़ा एरिया दिखाना है, उसको पेपर पे दिखाना है, मैप पे दिखाना है, तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। मतलब बहुत बड़े एरिया के लिए छोटा सा स्केल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें
1000 किलोमीटर के लिए केवल हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। बड़े एरिया को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मैप टू शो स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज, टाउन or suburb in a detail on a map, we use a large scale. For example, 1 centimeter equal to 100 meter of the ground. Large scale map given more information than small scale map. अब हमें छोटा एरिया दिखाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लार्ज स्केल ले सकते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हम क्या लें? केवल 100 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर को ले लें तो हमें क्या होगा? एक छोटे एरिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा स्केल हमें मिल गया। ठीक है ना, हमने वहाँ तो 1000 किलोमीटर को दिखाने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ केवल 100 मीटर को दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर लिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वाले स्केल पे दे सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर छोटा एरिया दिखाना हो तो हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं, और बहुत बड़े एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। अ स्केल में बी यूज फॉर मेजरिंग एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम दोज shown on a map. If the scale is 1 centimeter to 500 meter and distance between two places of the map is 3 centimeter, the actual distance between these two places will be equal to 3 into 500 meter equal to 1500 meter. अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है। सपोज करो मैंने शो किया है मैप जो बनाया है उसमें 1 सेंटीमीटर जो है किसके इक्वल है? 500 मीटर के इक्वल है। अब मैं बोल रही हूँ कोई डिस्टेंस मैंने ले लिया दो जगह का, वो 3 सेंटीमीटर है। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल माना था हमने? 500 मीटर के। तो 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? 1500 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर से हम 1500 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, और हम इजीली पता लगा सकते हैं कि दो जो प्लेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। Next component is direction. We can locate any place with the help of direction. There are 4 major directions: north, south, east and west. These are called cardinal point or cardinal direction. Other 4 intermediate directions are northeast, southeast, southwest, northwest. We can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. अब स्टूडेंट आपने पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है, डायरेक्शन टोटल हमने क्या है 4 तो मेजर डायरेक्शन होती हैं, और 4 कौन सी डायरेक्शन है? सब डायरेक्शन है। जो मेजर डायरेक्शन है उनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन जो होती हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी तरीके से इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, सब डायरेक्शन, वो कितनी है? वो भी 4 है। 4 हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और इन डायरेक्शन से हम किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अ कंपास इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट डायरेक्शन एनीवेयर, एनी टाइम. It is a magnetic needle always point toward north south direction. अब डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास क्या है? एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और आप पढ़ोगे जैसे जैसे आपकी साइंस की बुक में पढ़ोगे कि मैग्नेट हमेशा जो है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है। तो कंपास के अंदर क्या होता है? एक निडल होती है जिसपे जनरली रेड या ब्लू कलर से एन लिखा हुआ होता है या कलर किया हुआ होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। उसको हम कहीं पे भी रखते हैं, जिधर वो ठहर जाती है वो नॉर्थ वाली उसकी निडल वो डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ। और जो नॉर्थ अगर हमें पता चल गई तो क्या होगा? बाकी और डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजुअली द मैप शो द डायरेक्शन. मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. At the upper right hand corner, this arrow show the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. ये आपको बुक में दी हुई है। ये कंपास है, कंपास में नॉर्थ आपको शो किया हुआ है, और इसको हम कहीं पे भी रखेंगे ये नॉर्थ साइड में जाके निडल ठहर जाएगी, और वो डायरेक्शन अगर हमें नॉर्थ पता चल गई तो बाकी सारी डायरेक्शन हम खुद ब खुद पता लगा सकते हैं। ठीक है।
When you know the north, you can find out other direction, east, west, south. However, no sign has been. We take the direction on a map as follow. अब हम north is always toward the top. हम मैप को हमें हमेशा नॉर्थ को ऊपर अपवर्ड एरो बना के लेते हैं. साउथ इज ऑलवेज टूवर्ड द बॉटम. साउथ को हम शो करते हैं मैप में डाउनवर्ड एरो से. ईस्ट इज ऑलवेज टूवर्ड द राइट एरो से हम शो करते हैं. और वेस्ट इज टूवर्ड द लेफ्ट एरो. और इस तरीके से हम डायरेक्शन जो है शो करते हैं मैप में एरो के द्वारा.